Namaskar, we're extremely excited to bring to you Eat Right initiative of FSSAI. I'm Nidhi Kumar, your host for today, acknowledging the support and the guidance of Herbalife Nutrition and Daily Hunt and Josh, our broadcasting partners. And together we'd like to extend a very fervent welcome to all of you joining us on this session on food, fitness, and sports. So eating a good diet can provide the energy that you need to finish a race or just enjoy a casual sport or activity. You're more likely to be tired and perform poorly when you do not eat and you do not eat well enough. Whether it's calories, carbohydrates, fluids, ions, vitamins, or proteins, nutrition can help enhance athletic performance. To talk more on this, I'd love to welcome amidst us today Dr. Sunita Godara, Asian Marathon Champion 1992, marathon and fitness coach and promoter. She won the 1992 Asian Marathon Championship. She's completed 76 full marathons, 42.2 kilometers, records of more than 200 international races in marathon running career. She's won maximum number of international marathons by an Indian. Since 2006, she has been professionally coordinating the top Indian marathon runners pan-India as elite runners coordinator pan-India, and a fitness and marathon consultant conducting fitness and positive lifestyle workshops pan-India. She's also been the Olympic torchbearer escort runner at the Atlanta Olympics in 1996. She's operating Dr. Sunita is operating Sri Shakti Kendra. Dr. Sunita is operating Sri Shakti Kendra, and where she trains urban slum girls on health, education, life skill education, and legal aspects of women empowerment. And the Taekwondo Academy also, which has 17,000 girls till date from slums and MCD schools. She's also partnering with government bodies, UN agencies, and corporate companies. बहुत धन्यवाद. Thank you for joining us today. Sunita ji, always a pleasure to have you here with us. Thank you. It's my pleasure. Sunita ji, पहला सवाल तो ये कि why is nutrition so important in sports and fitness and in athletics? See, for a normal person and for a sports person, moreover for a sports person it is more important, but for normal person also, the body well-being, health and fitness, not only doing exercise you will get the healthy body, your mental level, your psychological conditions, plus your nutrition play a great role, a vital role. So that's why nutrition is very important. जैसे खाओगे, खाओ चंगा, मन हो चंगा और तन हो चंगा. बिल्कुल. So how does it affect performance? मतलब अगर आपके बारे में बात की जाए तो आपने अपने मैराथन के टाइम में किस तरह की डाइट ली थी? क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? Okay, see, when we talk about sports persons, हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं. अगर मैं मैराथन रनिंग लूं so every day 15 to 20 kilometers, sometimes if you are a great performer or an international performer like me, then 20 to 25 kilometers on an average every day you do in a different manner. Like कभी fast करते हैं, कभी slow करते हैं, कभी up down करते हैं. तो ये एक jarring impact देता है आपके knees में. ये एक प्रेशर पॉइंट डेवलप करता है आपकी बॉडी में, ये लैक्टेट बिल्डअप करता है आपकी बॉडी में और आपको का एनर्जी लेवल भी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन करता है क्योंकि आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम वो लूज होता है, आपको एक्स्ट्रा विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है. तो हमारे लिए जो स्पोर्ट्स परफॉर्मर है उनके लिए तो न्यूट्रिशन बहुत मायने रखता है. और इसमें भी सिर्फ एक तरह का न्यूट्रिशन नहीं, प्री रेस न्यूट्रिशन यानी कि ट्रेनिंग में आपको क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्या फूड लेना है, क्या फूड सप्लीमेंट्स लेने हैं, और ड्यूरिंग द रन क्या लेना है और आफ्टर द रेस क्या लेना है, ये बहुत मैटर करता है.
और अगर मैं बात करूं सारे विटामिन की, तो ए बी सी 12 जितने भी विटामिन होते हैं, अगर किसी एक की भी कमी हो गई, अगर आपके अंदर पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी हो गई तो क्रैम्प्स आने लगते हैं। अगर आपके अंदर कोई विटामिन कम हो गया तो कोई भी एलिमेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपका जो फूड इनटेक है वो तो बेहतर होना ही चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, कैलोरी काउंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे खिलाड़ी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करते हैं, अगर हम गरिष्ठ खाना खाएंगे, ज्यादा आलू के पराठे और पिज्जा खाएंगे, तो कैलोरीज तो उसी से कवर हो जाएंगी। तो फिर जो कैलोरीज हमें न्यूट्रिशन की चाहिए वो मिल नहीं पाएंगी। तो इसलिए सात्विक खाना खाना बहुत जरूरी है हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और साथ साथ सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं। और वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मल बंदे को भी आजकल सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हो गए हैं, बट जो स्पोर्ट्स करता है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको सप्लीमेंट लेना ही चाहिए, तभी पूरा होगा। अब जैसे अगर आपने मेरे बारे में पूछा, तो जिस समय मैं मैराथन कर रही थी तो उस समय ऐसा नहीं है, पूरे फ्रूट्स और पूरा सैलड, स्प्राउट्स, मिल्क, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं जो इनटेक करती थी फूड सप्लीमेंट्स में, उसमें जिंक जरूर होता था, मल्टी विटामिन जरूर होता था, कैल्शियम जरूर होता था, प्रोटीन का जरूर होता था, स्पिरुलिना जरूर होता था, एलोवेरा जरूर होता था। और उस समय उस जमाने में यहाँ पे जिनसेंग नहीं होता था, तो हम तो चाइना, मतलब हमारे लिए बाहर से आता था। जिनसेंग बहुत जरूरी है। तो आजकल तो हमारे पास बेरी जूस होते हैं, सुपर 31 होता है, स्पिरुलिना होता है, एलोवेरा होता है, सारे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स अब हमारे पास हो गए हैं। और इम्यूनिटी, जब से ये कोरोना हुआ है तब से सबको मालूम भी चल गया है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमें खाने चाहिए। वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एक खिलाड़ी को जरूर खाने चाहिए, क्योंकि उसको तो हम देखिए, एक तो स्पोर्ट्स से अपना इम्यूनिटी बूस्ट रखते हैं, लेकिन उस बूस्टेड जो हमारी इम्यूनिटी है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, उसको हेल्दी रखने के लिए और परफॉर्म करने के लिए हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और जो आपने मुझे टॉपिक दिया है ना, फूड, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, अच्छा फूड लेंगे, न्यूट्रिशियस फूड लेंगे, पूरे सप्लीमेंट्स होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो फिटनेस अच्छी होगी। और जब फिटनेस अच्छी होगी तभी तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये बड़े को रिलेटेड हैं, इनके अलावा तो काम चल ही नहीं सकता। दूसरा, जब आप अच्छा खाएंगे, सात्विक खाएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। जब आपको नींद अच्छी आएगी तो आप नेक्स्ट डे फ्रेश उठोगे तो आप ज्यादा वर्कआउट कर पाओगे अच्छे से। तो आपने Yes. कहा प्रोटीन भी, आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह की आप प्रोटीन डाइट खुद लेती थी? दालों के बारे में बात की देखिए, जाए तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन कम लो, विटामिन ज्यादा लो, ये किस तरह इफेक्ट करता है एथलीट्स को? इवेंट क्या है, आपके मसल्स को रिजुवनेट करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स करते हैं तो आपकी मसल यूज होती हैं। हो सकता है कि एक रेसलर को और बॉक्सर को और वेट लिफ्टर को ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो रनर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको प्रोटीन नहीं चाहिए। हमें कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए तो जितना हमारा बॉडी है उतना ग्राम प्रोटीन तो एक नॉर्मल पर्सन को भी जरूर चाहिए। तो क्योंकि हम जो मैराथन रनर्स हैं उनको इतना वेट कंट्रोल भी रखना पड़ता है। हमारी कोई वेट कैटेगरी नहीं होती, तो हमें अपना वेट बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। सिर्फ 9 to 10% फैट परसेंटेज गर्ल्स में और 7% फैट परसेंटेज बॉयज में होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज्यादा डाइट कंट्रोल और न्यूट्रिशियस होती है। तो हम क्या करते थे उस समय, जब मैं मैराथन में बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही थी, एशिया की बेस्ट रही हूँ, तो उस समय हम बॉयल एग में येलो पार्ट निकाल देते थे, जबकि येलो में ज्यादा अच्छा प्रोटीन होता है। अब मैं खाती हूँ, क्योंकि अब मेरे को उतना वेट कंट्रोल का वो नहीं है, प्रेशर। लेकिन जिस समय मैराथन करती थी उस समय अगर मैं 4 अंडे ले रही हूँ तो वो व्हाइट पोर्शन होता था। और जो मैं मिल्क लेती थी वो नॉन क्रीम मिल्क होता था, अभी भी होता है। हाँ, कर्ड जरूर होता है मेरे फूड में, क्योंकि जो आदतें मेरी पड़ गई 40 साल तक वो अभी भी छूटी नहीं है। और इसी वजह से 63 की एज में भी मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ, 35 की तरह। तो कर्ड जरूर होता है मेरी फूड में, मिल्क जरूर होता है, स्किम्ड मिल्क। फिर
बटर मिल्क जरूर होता है। मट्ठा तो 1 किलो तक तो मट्ठा ही हो जाता है, 2 बड़े बाउल कर्ड हो जाता है। ये मैं पूरे दिन में कर रही हूँ। और आजकल सिर्फ 2 बॉयल एग लेती हूँ, नहीं तो उस समय क्योंकि 20 किलोमीटर भी होता था तो 4 भी चल जाते थे, लेकिन सिर्फ व्हाइट पोर्शन। तो इस तरह से। अच्छा, एक स्प्राउट्स, बहुत ज्यादा स्प्राउट्स लेने से उसमें कैलोरीज बहुत होती हैं। तो अगर आप पतले दुबले हैं और आपको वेट कंट्रोल करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप मुट्ठी भर उससे भी ज्यादा स्प्राउट्स ले सकते हो। लेकिन एक मुट्ठी भर स्प्राउट्स तो एक खिलाड़ी को रोज खाना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी समय खाए। लेकिन अगर ट्रेनिंग के बाद खाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिन में किसी भी टाइम स्प्राउट्स जरूर खाने चाहिए। उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। जी। और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए और आजकल जो आपने देखा है, क्या प्रचलन है, किस तरह की चीजें लोग खा रहे हैं? देखो, क्योंकि अभी अब अभी तो इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं, स्पोर्ट्स कंपनीज आ गई हैं, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बनाने लगी हैं, तो प्रोटीन पाउडर आने लगे हैं, रिहाइड्रेशन टैबलेट्स आने लगी हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। और कई सारी कंपनी, अभी मैं क्योंकि यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं किसी एक कंपनी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स आने लगे हैं। हम्म और हम क्योंकि 40 साल पुरानी अगर बात करें तो नींबू, आंवला जूस, ये सारे ड्रिंक्स जो हैं ये लेते ही थे ना। तो अब अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो एनर्जी ड्रिंक के लिए। अच्छा, फायदा क्या होता है सप्लीमेंट्स में? अब मैं पूरे सप्लीमेंट्स लेती हूँ। सप्लीमेंट्स का फायदा ये होता है कि वो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड बने होते हैं। क्या पोर्शन आपको चाहिए, एक टैबलेट में रिक्वायर्ड उतना पोर्शन होता है कि आपको 250 ml में एक टैबलेट डाल देंगे, और वो आपका रिहाइड्रेशन और आपकी बॉडी को रिजुवनेट करेगा आफ्टर ट्रेनिंग। तो ये फायदा होता है सप्लीमेंट्स का, कि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में 90 तुले के हिसाब से बनते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे स्पिरुलिना की एक टैबलेट आपने सुबह खा ली, एक टैबलेट आपने शाम को खा ली, आपके पूरे विटामिन पूरे हो गए। ऐसे ही एलोवेरा का है, ऐसे ही जिनसेंग का है। तो टैबलेट फॉर्म में फूड सप्लीमेंट लेना एक खिलाड़ी के लिए जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि कितना खाएगा, कितना सारा पालक खाएगा, कितने सारे आंवले खाएगा, नहीं खा पाएगा ना, कितने सारे संतरे खाएगा। मुझे याद है मैं 8 ऑरेंजेस खाती थी एक साथ। मैं कभी किसी से अपना फ्रूट बाउल शेयर नहीं करती थी। मुझे बहुत आश्चर्य होता था जब लोग एक प्लेट में कट पीसेस रखते हैं और वहां 4 लोग बैठे होते हैं और उसको खाते हैं। मैं पूरी प्लेट भर के खाती थी। तो कई फैमिलीज में जहाँ 4-5 बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर वहां पर उनके लिए फूड सप्लीमेंट जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक साथ अगर आप 4 सेब नहीं खा सकते हो तो कोई ऐसा फूड सप्लीमेंट ले लो जो कि हो सकता है उससे सस्ता पड़ जाए आपको। आजकल आयुर्वेदा में बहुत अच्छे आ रहे हैं, नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल, बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो आप थोड़ी देर पहले ज़िक्र कर रही थी कि जैसे बॉक्सर्स और रेसलर्स को डिफरेंट वेट कैटेगरीज़ मेंटेन करनी पड़ती हैं। बट यहाँ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत लोगों को ट्रेन करती हैं, इंस्पायर करती हैं, मैराथन रनर्स को। सो आफ्टर यू फिनिश से अ रेस, स्पॉट ए टू स्पॉट बी, और आपने वो रेस जीत ली या जो भी है, how does hunger pang treat you at that time? Do you feel more hungry? Do you feel less hungry? Uh, do a lot of players make that mistake of really eating everything that is possible? How should you eat at that time? एक हाई परफॉर्मेंस लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो कि सिर्फ शौकिया दौड़ रहा है और मैराथन पूरी कर रहा है, प्री रेस खाना क्या है? हम जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम में कहते हैं बहुत फाइबर्स खाओ, आपकी और जितना भी है कच्चा फ्रूट खाओ। हाँ, जूस कम पियो, फ्रूट ज्यादा खाओ, पानी Raw. हाइड्रेशन जरूरी है। लेकिन जिस समय आपकी 2 दिन पहले रेस के, आप ना बहुत ज्यादा फाइबर भी मत खाओ, क्योंकि वो पेट में आपके 72 आवर्स रहेंगे, फिर आपको रेस में प्रॉब्लम होगी। बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट भी नहीं लो, बहुत ज्यादा मीट और रेड मीट वगैरह भी नहीं लो, और उस समय आप लिक्विड जूस वगैरह पे आ जाओ। और जब आफ्टर द रेस प्रोटीन डाइट ज्यादा खाओ, क्योंकि आपकी मसल को रिजुवनेशन चाहिए, आपकी मसल रिपेयर होनी है, तो उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट खाओ। तो जैसे चिकन खाना है तो उसको एंजॉय करो बाद में, रेस के बाद। रेस की पहले वाली नाइट तो बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि उस समय जो भी मीट आप जो भी नॉनवेज खाओगे वो आपके पेट में 72 आवर्स रहेगा। कोई भी
प्रोटीन का जो पदार्थ होता है, जिसे हम गरिष्ठ पदार्थ भी कह सकते हैं, कुछ भी, वो आपके पेट में 72 आवर्स रहता है। और आपको अगर नेक्स्ट मॉर्निंग मैराथन दौड़नी है तो आपको लाइट होना चाहिए। तो उन 2 दिनों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो खाते हैं, ज्यादा लिक्विड फॉर्म में खाते हैं, जिससे कि बॉडी लाइट रहे। एक तो ये बात है। और ड्यूरिंग द रन, ड्यूरिंग द रेस आपने सुना होगा कई लोग चॉकलेट खाते हैं। तो मैं एज एन एक्सपर्ट, एज एन मैराथन एक्सपर्ट कहना चाहूंगी कि जो 4 घंटे से ऊपर की मैराथन, यानी कि बहुत ही स्लो मैराथन दौड़ रहे हैं, उनके लिए तो फिर भी चल जाएगा। हाँ, लेकिन ग्लूकोज पीना एक मैराथन रनर के लिए बिफोर द रेस लाइक हाराकारी करना, क्योंकि उससे आपका ग्लाइकोजन लेवल बढ़ता है और आपके अंदर जो क्रेविंग है पानी पीने की, वो ज्यादा हो जाती है। तो वो एक 100 मीटर के रनर के लिए जितना सुटेबल है ग्लूकोज पीना, क्योंकि वो 10 सेकंड से 20 सेकंड की एक्टिविटी कर रहा है, एक 30 मिनट से ज्यादा की, उसमें 10 किलोमीटर भी आ जाएगा, 21 किलोमीटर भी आ जाएगा, 42 किलोमीटर भी आ जाएगा और अल्ट्रा मैराथन भी आ जाएगी। उन लोगों को ग्लूकोज, एक्टिविटी शुरू करने के पहले ग्लूकोज नहीं पीना चाहिए। हाँ, आप आफ्टर द एक्टिविटी पी सकते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी गिविंग ड्रिंक है, लेकिन ग्लूकोज तो बिल्कुल नहीं ड्यूरिंग द रेस। उस समय इसके इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं। तो जो एनर्जी ड्रिंक है वो इलेक्ट्रोलाइट हो तो ठीक है, लेकिन वो प्योर ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चल जाएगा। और चॉकलेट वगैरह जो है वो स्लो रनर्स के लिए तो सुटेबल है, क्योंकि हैंगर पेंस शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक परफॉर्मर के लिए रास्ते में कहीं भी चॉकलेट वगैरह मिल रही हो, आपको क्रेविंग भी हो रही हो, तो बेटर है कि आप बनाना का एक पीस उठा लो, जो कि आपको स्लो एनर्जी रिलीज करेगा बॉडी में। लेकिन चॉकलेट कभी मत खा लेना, क्योंकि एवरी 2.5 किलोमीटर बाय रूल, बाय मेडिकल रूल, एवरी 2.5 किलोमीटर पानी मिलेगा। लेकिन अगर आपने चॉकलेट खा ली तो आपको आधे किलोमीटर रन करने के बाद ही प्यास लग जाएगी और फिर आप स्लो हो जाओगे। तो जो परफॉर्मर्स हैं वो ये चॉकलेट वगैरह नहीं खाते हैं, ये जेल वगैरह जो भी मिलते हैं वो सब स्लो रनर्स के लिए ठीक है, लेकिन जो फास्ट रनर्स हैं वो नहीं खाते। और अगर मसल को रिजुविनेट करने की जो टिप्स हैं वो क्या शेयर करेंगी आप? देखो, मसल को रिजुविनेट करने के लिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग तो कुछ नहीं है, आपने अगर ट्रेनिंग अच्छी की हुई है तो मसल टायर्डनेस नहीं होती है। लेकिन फूड के मामले में मसल्स को रिजुविनेट करने के लिए प्रोटीन का कोई भी इनटेक आपकी बॉडी में जरूर होना चाहिए, प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका मैग्नीशियम पोटेशियम पूरा होना चाहिए, क्योंकि जितना पसीना आपको आता है उसके साथ आपकी बॉडी से आपका मैग्नीशियम पोटेशियम डिप्लीट होता है, और उस डिप्लीशन को कवर करने के लिए आपको फिर ये सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। या फिर खाने में इतने अच्छे से हो कि उसमें इतने सारे फ्रूट्स हो कि उससे आपकी ये कमी पूरी हो, अदरवाइज सप्लीमेंट्स ले लेनी चाहिए। डॉक्टर कोडारा, आप बहुत ट्रेनिंग करती हैं स्लम एरिया से लड़कियों की, तो उनकी डाइट में किस तरह की जद्दोजहद होती है? क्या पहलू सामने आते हैं? देखो, जो खिलाड़ी गरीब हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सप्लीमेंट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम उनको फिर ऐसे सप्लीमेंट्स बताते हैं, या जो सरकारी अस्पताल है उसमें कैल्शियम मिल रहा है, विटामिन ई मिल रहा है, मल्टीविटामिन मिल रहा है, वो सब उनको दिलवाते हैं। नहीं तो मैं अपनी संस्था में जो गरीब लड़कियां हैं और हमारी ताइक्वांडो खेल रही हैं और अच्छे नेशनल लेवल पे जा रही हैं, और या मेरे अपने क्लब के खिलाड़ी भी हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको मैं बोलती हूँ रोज आपके खाने में 4 नींबू का रस, चाहे आप उसको शिकंजी बना के पियो, दाल में डाल के पियो, जरूर होना चाहिए। रोज आपके खाने में प्याज, अदरक और लहसुन जरूर होनी चाहिए, जो जॉइंट्स को आपके स्ट्रॉन्ग करती है, एंटीऑक्सीडेंट है। रोज आप हल्दी का दूध जरूर पिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और स्प्राउट्स बहुत महंगा होता ही नहीं है। रोज 10 तरह की दालें हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ फूलती हैं लेकिन खाने में ठीक रहती हैं, जैसे सोयाबीन वगैरह, और कई हैं जिनके अंकुर निकलते हैं। सबको मिक्स करके और वो खाएं। मौसम का फल खाएं, मौसम का फल बहुत सस्ता होता है और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। मौसम की सब्जियां खाएं,
4 विभिन्न रंग की सब्जियां खा ले तो आपके सारे विटामिन पूरे हो जाते हैं। गाजर हो गई, पालक हो गया, जो भी मतलब, और जो कच्ची खा सकते हैं, शलगम, गाजर, वो तो खीरा, ककड़ी, वो तो बहुत जरूरी है और ये सब सस्ता होता है। जैसे बादाम है, किशमिश है, काजू है, ये बहुत महंगे ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन हम गरीबों का जो ड्राई फ्रूट हम बताते हैं, उनको बोलते हैं गर्मियों में गज्जक खा लो, गुड़ भी हो गया, मूंगफली भी हो गई। तो इस तरह से उनको ऑल्टरनेट बता देते हैं। क्या राज है अब आपकी फिटनेस का और किस तरह आपकी दिनचर्या अब चलती है? आप अभी भी काफी भाग लेती हैं, कितने किलोमीटर आप मैराथन कर सकती हैं अभी भी? मैं आजकल ट्रेनिंग कराती हूँ और जहां तक भागने की बात है, मेरा जब उनके साथ में 20 मिनट्स का वर्कआउट होता है एक्सरसाइज का, वो मैं उनके साथ करती हूँ। और जितनी देर अगर उनको मैंने 10 किलोमीटर्स का वर्कआउट कराना है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 30 रनर्स में से एक भी ये नहीं कह सकता कि मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। इसका कारण यही है कि लोधी गार्डन में एवरी डे 6 to 8 जो मैं वर्कआउट कराती हूँ, उस पूरे वर्कआउट के टाइम में 3 से 4 किलोमीटर मेरा भी कवर हो जाता है। बिकॉज एक बार मैं इस पॉइंट पे होती हूँ, एक बार उस पॉइंट पे होती हूँ, तो फास्ट वॉक करके उनको हर पॉइंट में मैं एनकरेज करती हूँ। और फिर उसके बाद जब उनका योगा हो जाता है, मैं उनको फिर लास्ट में योगा और पॉजिटिव एफर्मेशंस कराती हूँ। उसके बाद 1 घंटा मैं अपने ऊपर स्पेंड करती हूँ, जिसमें मैं खुद अपने पूरे योगासन वगैरह जो भी मुझे करने हैं फिटनेस के लिए, वो मैं करती हूँ। तो इस रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से सेकेंडली बहुत जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं, तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस उसमें बहुत मदद करते हैं। और जितना अच्छा हम सोचते हैं, उतने अच्छे हमारे विचार जितने होते हैं, उसी तरह से हमारे फिर वो हमारे सोचने पे असर जैसा करते तन वैसा मन, बिल्कुल। हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। फालतू की गॉसिप में तो कुछ रखा नहीं है। तो बस कोरोना भी आया तो भी हमने इतने वीडियोस बनाए, इतने लाइव शोज किए, जूम पे किए, और क्योंकि हमारे बहुत से रनर्स जूम पे नहीं आते हैं, तो मैंने फेसबुक लाइव किया, उनको बिजी रखा, क्या कर रहे हो, अपना एक्सरसाइज वीडियो भेजो। तो उस समय हम बहुत एक्टिव हो गए थे सोशल मीडिया पे, कोरोना लॉकडाउन टाइम में। अभी तो हम लोधी गार्डन तो खुला हुआ है, तो एवरी डे यू कैन except this weekend lockdown, every day 6 to 8 I'm in Lodi Garden for runners, and then 8 to 9 I'm doing my own exercise. And on that note, I'd like to thank you for sharing your valuable time and giving us so many insights on keeping healthy, keeping fit, and nutrition. Our deepest gratitude to you, to Eat Right India Initiative, to FSSAI, to Herbalife Nutrition for supporting us in this initiative, and to our broadcasting partners, Daily Hunt and Josh, for helping us reach millions of Indians. On that note, namaskar. Many thanks for watching.